Hello students, today I have a song, Tears, Idle Tears, from the pen of Alfred Lord Tennyson. In fact, this song occurs in the beginning of Canto 4th of the poem The Princess. The Princess is a long narrative poem written by Alfred Tennyson, and this song is from that, which occurs in the Canto 4. After a day's hard work, the Princess Ida asks one of the maidens to sing a song, and she sings this song, which we are going to do. The mood of the lyric is one of the wistful longing, and it harmonizes well with the mood of the princess at the moment. है ना? प्रिंसेस खुद सैड है इस मूड पे, तो सॉन्ग की जो लैंग्वेज है वो भी उसके साथ कोइंसाइड करेगी. इट्स अ पॉइंट लिरिक which goes directly to the heart of the readers, and its popularity has been a continuing one, and it's included in most anthologies of English lyrics. हर एंथोलॉजी में, हर जब भी जो भी सिलेबस होता है बच्चों का, हर यूनिवर्सिटी के मोस्टली सिलेबस में ये पोएम इंक्लूडेड होता है. नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट. Tears, idle tears, I know not what they mean. Tears come from the depth of some divine despair, rise in the heart and gather to the eyes. In looking on the happy autumn fields and thinking of the days that are no more. So, what's the substance of this part? The poet doesn't know the cause of tears that gather up in his eyes. पोएट नहीं जानता कि क्यों क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए, है ना, जो उसकी आंखों में इकट्ठे हो गए, उसका कारण नहीं जानता. Tears come from the depth of some divine despair. The immediate cause of his sadness may be something different, but the tears come from the depth of some divine despair. Divine despair का मतलब क्या हुआ? Deep sorrow associated with the memory of the past. Divine despair मतलब heavenly pleasure, कि कोई पास्ट में आपके पास बहुत ज्यादा खुशी थी और वो अब आपके पास नहीं रही, उसके बारे में सोचने से जो है आपके मन में दर्द हुआ. and the tears gather in the eyes, rise in the heart and gather to the eyes. So it is because of some heavenly pleasure, है ना, the sorrow fills the heart with such overwhelming intensity that it begins to overflow in the shape of tears. Rise in the heart and gather to the eyes. Tears कहाँ rise होते हैं? हार्ट में, क्योंकि कोई दुख आपके दिल में इकट्ठा हुआ, इतना ज्यादा इकट्ठा हुआ कि वो आंखों में आंसू की फॉर्म में बहने लगा. लेकिन यहाँ प्रेजेंट में कारण क्या है? इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर. प्रेजेंट में रोने का कारण क्या है? ऑटम, है ना, हैप्पी ऑटम फील्ड्स देख के. ऑटम इज द सीजन व्हेन द कॉर्न इज राइप, फसलें पकी हुई हैं, हार्वेस्ट इज रेडी, फसल काटने का टाइम हो गया. सो द रिचनेस ऑफ द राइप फील्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ द फार्मर्स होप, है ना. किसान को बड़ा मजा आता है जब अपने खेतों को वो फसल से भरा हुआ देखता है और हार्वेस्टिंग करनी है ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है. ही इज हैविंग सो मच प्लेजर. लेकिन उस प्लेजर को देख के, प्लेजर कौन सा, कि खेत जो है वो फसलों से हरे भरे लहरा रहे हैं फसलों से, है ना, तो उसको देख के पोएट के मन में उसको देख के पोएट अपने टाइम को कंपेयर कर रहा है कि उसके पास भी किसी समय पे इतनी खुशियां थी जो अब नहीं रही. तो दैट्स व्हाई द टीयर कम्स टू हिज आईज एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर. So
The cornfields, they remind him of his own past happiness. उन हरे भरे खेतों को देख के, फसलों को देख के पोइट को जो है वो अपने दिन याद आ रहे हैं हंसी खुशी के, जो अब नहीं रहे. That's why the tear comes in his eyes. Fresh as the first beam glittering on a sail that brings our friend from the underworld, sad as the last which reddens over one that sinks with all we love below the verse. So sad, so fresh, the days that are no more. So, what's the substance? The memory of his past happiness is as fresh as the hope which is kindled at the sight of a ship on the eastern horizon. है ना. इस वाले स्टैंजा के अंदर पोइट क्या कह रहा है कि भी उसको अपनी पास्ट की जो हैप्पीनेस है वो इतनी फ्रेश है उसके दिमाग में, जैसे कि व्यक्ति को आशा होती है जब वो देखता है कि शिप दिखाई दे रहा है ना. कि शिप जो ईस्टर्न साइड से, पूर्व दिशा से एक शिप आता हुआ जब ओशन में दिखाई देता है तो एकदम व्यक्ति खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका फ्रेंड्स जो है वो घर आ रहे है ना. एंड लिट अप बाय द अर्ली रेज ऑफ द सन. शिप जो है, मतलब समुद्र में कभी देखो कि शिप आ रहा है दूर से तो वो कैसा लगता है कि पहले थोड़ा सा दिखेगा, फिर और थोड़ा दिखेगा, फिर और थोड़ा दिखेगा, उसको फुल व्यू में आने में थोड़ा टाइम लगता है ना. तो फिर वो जैसे शिप पूरा दिखने लगता है तो वो यूं लगता है कि भी सनलाइट से वो लिट हो रहा है, चमक रहा है. लेकिन नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है? The unreal nature of this hope produces a regret, which is as point as that which one feels at the last glimpse of the ship carrying away one's dear friends. लेकिन क्या है कि वो हैप्पीनेस थोड़ी देर की ही है, क्योंकि शाम को वही फ्रेंड को, उसके फ्रेंड्स को वो शिप जो है वापस लेके जा रहा है. So let's see this text. Fresh as the first beam glittering on a sail. Sail किसको कह रहे हो? शिप को, है ना. तो जो मेमोरी है वो फ्रेश है. फ्रेश मतलब विविड है. विविड मतलब एकदम लाइव है उसके दिमाग में, खूबसूरत अच्छे ढंग से है. कैसे है? जैसे कि फर्स्ट बीम होती है, पहली किरण होती है सूरज की, जो शिप पे पड़ रही होती है. That brings our friends up from the underworld, जो हमारे फ्रेंड्स को दूसरे देश से ला रही होती है. अंडरवर्ल्ड इसलिए कहा है क्योंकि शिप अपीयर्स in the when a ship appears in the distance only the upper part is visible due to the rotundity of the earth and then all its shape gradually emerges in view. अभी तुम्हें बताया ना मैंने कि जैसे शिप दूर से हमें दिखाई देता है तो वो थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, धीरे धीरे जैसे जैसे शिप आगे बढ़ता है तो हमें पूरा हिस्सा दिखाई देता है. तो इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे शिप जो है वो अंडरवर्ल्ड से आ रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं, दूसरे देश से आ रहा है. Sad as the last which reddens over one. लेकिन ये जो खुशी है, ये जो होप है, ये थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि फिर से हम सैड हो जाते हैं, है ना. क्योंकि वो शिप क्या हो गया? रेड हो गया. रेड किस में हो गया? गोल्डन लाइट में हो गया. दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ज, है ना. क्योंकि शिप कहाँ चला गया? बिलो द हराइजन चला गया, टेकिंग अवर बिलवेड वंस. सो in the same way, so fresh, so sad, so fresh the days that are no more. Thinking about all that, usko he regrets for the days which are no more there, है ना. तो वो उन दिनों के लिए अफसोस कर रहा है जो दिन अब दुनिया में, जो दिन अब खुशी के उसके जीवन में नहीं रहे. लेकिन the memory is there, है ना. The memories of those happy days is there. Are sad and strange, as in dark summer dawns, the earliest pipe of half-awakened birds to dying ears, when unto dying eyes
The casement slowly grows, a glimmering square, so sad, so strange, the days that are known. So इस पार्ट में क्या बोल रहा पोएट? Due to the passage of time, the memory of the past happiness becomes blurred and dim. है ना? समय के साथ साथ जो मेमोरी है आपकी उस पास्ट हैप्पीनेस की वो हल्की पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है. Just as for a dying person, the sight of the window lit up by the beautiful morning light on the summer day becomes dim due to failing vision, and one's favorite and spontaneous song of birds singing in the morning assume an unfamiliar sound. This naturally causes a point sadness. है ना? तो क्या कह रहा है कि समय के साथ साथ जो खुशी है, जो मेमोरी है उन हैप्पी डेज की, वो फीकी पड़ जाती है. जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है, लास्ट स्टेज पे है, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना. उसको कुछ नहीं अच्छा लगता. समर डॉन्स, डॉन्स क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग. समर में अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि भी जो लाइट, सनलाइट पड़ती है खिड़की पे, वो वाली लाइट क्या, अब उसको कोई ब्राइट लाइट नहीं लग रही है ना, उसको स्ट्रेंज सी लग रही है, फीकी सी लग रही है. द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स, तो जब वो वाला अच्छा था, अच्छा हेल्थ में था, तो उसको पक्षियों की जो आवाज है वो बहुत अच्छी लगती थी. अर्लीस्ट पाइप, पाइप किसको कह रहे हैं? पाइप उनकी आवाज को ही कह रहे हैं. हाफ अवेकन बर्ड्स, बर्ड्स जो हैं उनकी एक अंदर से स्टिमुलस सा उनको होता है कि अभी जगे हैं या नहीं जगे हैं, सुबह सुबह ही चहचहाना शुरू कर देते हैं, है ना. लेकिन टू डाइंग ईयर्स मतलब द पर्सन हु इज टू डाई, हु इज ऑन द स्टेज ऑफ डेथ, लास्ट स्टेज ऑफ डेथ, टू हिम द समर, the light of the early rising sun is strange, sad, और क्या कह सकते हैं हम, ब्लर्ड होती है वो लाइट, उनको साफ नहीं दिखाई देती, अंधेरा ही दिखता है उनको. इसी तरह से बर्ड्स की जो आवाज है वो उनको स्ट्रेंज लग रही है, अजीब लग रही है. द केसमेंट स्लोली ग्रोज ए ग्लिमरिंग स्केयर. केसमेंट क्या होता है? खिड़की, है ना. खिड़की कौन सी? उनके कमरे की जो खिड़की है, किसकी? बीमार आदमी की, जो डेथ की स्टेज पे है, उसको वो एक स्क्वायर सा लगता है, टिमटिमाता सा, है ना. उसको वो चमक नहीं दिखाई दे रही. जब हेल्दी होते हैं तो कैसे अपन कहते हैं कि हाँ दिन निकल आया, देखो रोशनी हो गई, ऐसा कुछ नहीं फील होता, क्योंकि द पर्सन हैज नो टेस्ट, है ना. एवरीथिंग इज डल एंड बोर फॉर हिम. सो इन द सेम वे the poet is feeling so sad, so strange for the days that are no more, and the tears come in his eyes. Next, last stanza of the poem. Dear as the remembered kisses, dear as the remembered kisses after death, and sweet as those by hopeless fancy fiend, on lips that are for others. Deep as love, deep as first love, and wild with all regret. So, the memory of the past happiness is itself as dear to the poet as the memory of the kisses enjoyed in the past, and as sweet as those which we enjoy in our imagination, even though their actual enjoyment may be an impossibility owing to the death of the beloved or her marriage to another man. है ना. Dear as remembered kisses after death. Death तो ऐसे लिखा है. The memory of the past happiness is itself is as dear the memory of the past happiness is as dear to the poet
as the memory of the kisses enjoyed by the poet in the past, and as sweet as those which we enjoy in our imagination. है ना, कि उसको वो लग रहा है कि भी जो पास्ट हैप्पीनेस की मेमोरी है वो उतना ही मजा दे रही है, उतनी ही अच्छी लग रही है, जैसे कि अगर किसी की बिलवर्ड है तो उसको किस करना। हालांकि वो किसेस रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती, तो बंदा इमेजिनेशन में ऐसा सोच सोच के कि भी हाँ ऐसा कर सकते हैं, वो खुश होता रहता है। तो उसको लगता है कि भी पास्ट हैप्पीनेस की जो खुशी है वो वैसी ही है। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फील्ड। फैंसी फील्ड का मतलब क्या है कि भी आप इमेजिनेशन में आप फील कर सकते हो स्वीटनेस, आप इमेजिनेशन में उस स्वीटनेस को फील कर सकते हो कि वो कितनी स्वीट होगा उसको किस करना। लेकिन वो होपलेस है, होपलेस मतलब रियलिटी में पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज लव इज ऑलवेज ए टैबू इन सोसाइटी, नो वन अलाउज, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी, है ना। लव इज ऑलवेज ए टैबू, लोग जा रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सब कन्वेंशंस को और उन चीजों को छोड़ के, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सोशल नॉर्म्स दे डोंट अलाउ, है ना। लेकिन वो इमेजिन करना कि भी ऐसा होगा, वही चीज इतनी खुशी दे रही है। तो वो चीज कैसी है, पोएट को क्या लगता है कि भी पास्ट की जो हैप्पीनेस है वो उतनी ही स्वीट है, जैसे कि उन किसीज को रिमेम्बर करना उस समय के बाद जब वो बिलवेड की डेथ हो गई या बिलवेड की किसी और से मैरिज हो गई और वो बिलवेड आपको नहीं मिली। देखो आगे लिखा ना, ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, यानी कि वो बिलवेड किसी और की हो गई है कि नहीं, या उसकी डेथ हो गई। तो आप इमेजिन तो कर सकते हो कि भी ऐसा होगा, है ना। सो जस्ट एज ये चीज स्वीट है, उसी तरह से पास्ट हैप्पीनेस को क्या लग रहा है, स्वीट है। डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, डीप एज फर्स्ट लव। तो मेमोरी जो है पास्ट हैप्पीनेस की, दैट इज वेरी डीप, है ना। इट इज डीप, डीप मतलब इसमें इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा, जैसे कि फर्स्ट लव में। वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, बट द पोएट इज मैड, है ना। वो दुखी है क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि भाई दोज डेज आर नो मोर, अब वो दिन नहीं रहे। वो डेथ इन लाइफ, द डेज दैट आर नो मोर, तो भाई वो पास्ट हैप्पीनेस नहीं रही, है ना। तो इसलिए उसको क्या लग रहा है कि ये लाइफ कैसी है, जैसे लाइफ इन डेथ, life is no better than death if the pleasure for which we live is denied and is beyond our reach। जिस खुशी के लिए हम जी रहे हैं, अगर वो खुशी हमारे पास नहीं है या हमारी पहुंच से परे है, तब तो फिर क्या होगा, ऐसा ही लगेगा कि जैसे डेथ, जिंदा ही मरे हुए ही जी रहे हैं, लाइक दैट। So of course, all these things are on the these sort of feelings or experiences are the part of youth. As you grow in years, you become advanced in your thought process, in your thinking. Your philosophy changes, and you feel that love is not the only thing in life. There are so many other important aspects of life. There are number of other causes also for which one has to live. One should live. है ना, man is not born only for love, love is just the part of life। So anyway, this was the poem, so I hope you must have understood the text, and notes will be given in the description box, in the link given in the description box। So this poem was, of course, it was meant for the students of BA Part 2 of English Literature। So thank you.